Hello friends, now let us talk about unit 2, that is concept of disparity part 1. Okay, बच्चों, disparity means what? Disparity means differences or inequality, or you can say asamanata. Okay, inequality or asamanata means not treated equally. Okay, what happens in our society, bachcho? In our society, people are differentiated or divided on the basis of gender, then on the basis of occupation. People are divided on the basis of economic status. People are divided on the basis of status of in the the society, etc. Now let us talk about uh, what is there in chapter 2. Okay, or what to be learned in this chapter. Okay, in this chapter, in second chapter, we are going to learn stratification and inequality. There are different stratas in the society. Okay, those stratas can create inequality, or in what way stratas, okay, or stratification creates inequality in the society. Okay, we will see here. Then we will also talk about, we will also see gender disparities. In this, we are going to learn violence against women. Okay, then here we are going to learn what are the types of violence against women, types of violence against women, then causes, एक minute, causes, or you can say reasons of violence against women. Then what are the remedies on this issue. Okay, now here we are also going to learn female feticide and female infanticide. Okay, bachcho, female feticide, it's a kind of social crime actually. Okay, female feticide is antisocial activities. Okay, due to which there is, uh, you know, you know, due to female feticide and female infanticide, there is declining gender ratio or declining sex ratio. Okay, bachcho, female feticide and female infanticide itself is a major reason for declining gender ratio. Okay. The next year, you will also learn about portrayal of women in media, or you can say what is the role of media in creating positive or negative image of a woman. Okay, that is what is portrayal of women in media. Okay, next you are going to learn is next sorry next you will learn about disparities and disability. Okay, here you learn about problem of physically handicapped people and problem of mentally handicapped people. Okay, and additional topics are also there in this chapter, that is status of women in India, then socio-economic problems of women in India, solutions to socio-economic problems of women in India, then problems of socially handicapped people, then services available to handicapped persons, etc. So all these points, all these things you learn in chapter 2, that is concept of disparity 1. Now let us see about social stratification and inequality. Bachcho, stratification means classification or divisions, or you can say stratas. ओके, मतलब क्या बच्चों कि कौन से डिवीजन पर कौन से स्ट्रैटा पे
सोसाइटी को डिवाइड किया गया है. ओके, लेट अस से इन एनी सोसाइटी इट्स मेंबर्स आर नॉट इक्वल. ओके, किसी भी सोसाइटी में जो उसके मेंबर्स जो है आर नॉट इक्वल. Okay, because they are divided on the basis of education, on the basis of caste, है ना. For example, upper caste, lower caste, है ना, on the basis of economic status, on the basis of occupation, etc. Okay, on for instance, based on economic status, individuals are placed in different social classes. For example, lower income group people, middle income, upper income, etc. And of course, the caste system ranks groups as upper caste people, lower caste people. ओके, तो ये जो है बच्चों, ये क्या स्ट्रेटास क्रिएट करता है. ये जो है ये सोसाइटी को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, social stratification is a system of structured inequality. तो जो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना या तो फिर उसको क्लासिफाई कर देना. ओके, कौन से क्राइटेरियाज पे या तो कौन से बेसिस पे हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है. इन शॉर्ट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स कौन से क्राइटेरियाज पे या कौन से बेसिस पे हमने सोसाइटी को डिवाइड किया है, दैट इज व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. When we divide or rank the society on the basis of upper class, upper middle class, upper lower class, then middle class, lower class, etc. जब हम सोसाइटी को रैंक करते हैं बच्चों, तो उसके हिसाब से ही हमें प्रिविलेजेस जो है ओके वो मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, यदि हम अपर क्लास या अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं जो लोअर क्लास या लोअर कास्ट को नहीं मिलती. क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा. मतलब जब सोसाइटी को सोसाइटी के ग्रुप्स को या तो सोसाइटी को जब कास्ट के बेस पे या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे जब डिवाइड किया जाता है तो उसको कहा जाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ओके, इस तरह से सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, देन स्टेटस के बेसिस पे डिवाइड और क्लासिफाई किया गया है. इसको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा कहा जाता है. गॉट इट? नाउ लेट अस सी सिस्टम्स और टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सोसाइटी को डिवाइड करने के कौन से टाइप्स हैं. देयर आर 3 टाइप्स. ओके, और सिस्टम्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. फर्स्ट टाइप क्या है सोसाइटी को डिवाइड करने का? कास्ट सिस्टम. सेकेंड इज व्हाट? क्लास सिस्टम. एंड थर्ड वन इज व्हाट? स्टेट सिस्टम. Now let us see first caste system. The caste system as a form of social stratification is peculiar to India. Okay, caste system is an integral part of traditional Hindu social organizations. इसका मतलब क्या है बच्चों की हिंदू सोसाइटी में हिंदू रिलीजन में कास्ट सिस्टम जो है ये इंटीग्रल पार्ट है. ओके, बट ये जो कास्ट सिस्टम है बच्चों ये अदर रिलीजन्स में भी है. जैसे कि क्रिश्चियंस में कास्ट सिस्टम पाई जाती है, मुस्लिम्स में भी कास्ट सिस्टम्स पाई जाती है एंड सिख्स में भी कास्ट सिस्टम में पाई जाती है. लेकिन क्या है कि भारत में, इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन जो है, हिंदू रिलीजन जो है वो 88% है. तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा कास्ट एंड सब कास्ट है. ओके, the caste system is a rigid form of stratification based on hereditary status, traditional occupation, and restrictions on social relationships. इसका मतलब क्या है बच्चों कि कास्ट इज हैविंग
हेरिडिटी हेरिडिटी स्टेटस। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको जो कास्ट मिली है, मतलब वो आपके दादाजी या पापा की जो कास्ट है वही आपको भी मिलेगी। देन एवरी कास्ट इज हैविंग, या तो कास्ट हैविंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। ओके, मतलब आपके पेरेंट्स का, या तो आपके फोर फादर्स का, या तो आपका एंसेस्टर्स का जो भी ऑक्यूपेशन चला रहा है, वही ऑक्यूपेशन, तो जो उनका ऑक्यूपेशन था सेम ऑक्यूपेशन जो हो रहेगा वो आपका होगा। ओके, देन इट रेस्ट्रिक्ट्स ऑन सोशल रिलेशनशिप्स। ओके, मीन्स आप सोसाइटी में जो रिलेशंस मेंटेन करते हो, फॉर एग्जांपल आपके नेबर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, तो उसके उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। ओके, देयर इज नो सिंगल वैलिड थियरी दैट कुड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कास्ट। मतलब कास्ट कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे उत्पन्न हुई है, क्यों उत्पन्न हुई है, इसके बारे में कोई एक ऐसी वैलिड थियरी नहीं है। ओके, some sociologists are of the view that caste is a pre-Aryan institution, part of the prehistoric clan life in India. Okay, some scholars equate the caste system with the original old वर्ण सिस्टम। ओके, कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि वन सेकेंड, कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि जो कास्ट सिस्टम जो है ये वर्ण सिस्टम पे आधारित है। ओके, वर्ण सिस्टम जो है classified individuals into four groups based on the occupation which they perform in the society. Okay, वर्ण सिस्टम क्या कहते हैं बच्चों कि आप कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहे हो, आप कौन सी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, उस पे आपका कास्ट या तो आपका क्लास डिपेंड करता है, बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स। ओके, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, इन पे हमारा वर्ण सिस्टम जो है वो फॉर्म हुआ। ब्राह्मण्स कौन होते हैं? रिलीजियस प्रीचर्स, स्कॉलर्स, टीचर्स। ओके, क्षत्रियस कौन होते थे? रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड वॉरियर्स। वैश्यस कौन होते थे? मनी लेंडर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स। देन शूद्रास कौन होते थे? वर्कर्स और लेबरर्स। चैप्टर 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है बच्चों। ब्राह्मण्स की ड्यूटी क्या होती है, क्षत्रियस की ड्यूटीज क्या होती है, वैश्यस कौन होते हैं एंड शूद्रास कौन होते हैं। ओके, सो रिफर फर्स्ट चैप्टर आल्सो। बच्चों, वर्ण सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम आर टू सेपरेट कंसेप्ट्स एंड आर टोटली डिफरेंट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि वर्ण सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम कब कहा किसने शुरू की, इसकी कोई सोशल थियरी नहीं है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों सेम है, बट कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों कंप्लीटली अलग कंसेप्ट्स है। ओके, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि वर्ण सिस्टम ये एप्टीट्यूड, या तो एप्टीट्यूड या तो आप लोग एबिलिटी कह सकते हो। ओके, या तो उसको हम लोग योग्यता कहते हैं। ओके, तो वर्ण सिस्टम में एप्टीट्यूड या योग्यता योग्यता किस व्यक्ति में है या व्यक्ति में काम करने की योग्यता किस प्रकार की है, उस पे वर्ण सिस्टम आधारित थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति में कुछ सीखने की या रिलीजन के बारे में कुछ स्टडी करने की क्षमता या योग्यता है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्राह्मण। ओके, और किसी व्यक्ति में वॉरफेयर
या एडमिनिस्ट्रेशन की योग्यता है, ओके, देन ही कुड बी कंसिडर्ड एज क्षत्रिय। इसी तरीके से if a person with aptitude for business related activities, then he could be considered as vaishyas, okay। वर्ण सिस्टम के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों, वो ये कि जो काम, ओके, या तो जो वर्क इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है एज पर हिज एप्टीट्यूड और एबिलिटी, और इसको हम लोग क्षमता बोलेंगे, ओके, उसके बेसिस पे वो इंडिविजुअल बिलोंग करता है, वो इंडिविजुअल उस क्लास से बिलोंग करता है, ओके। दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली वर्ण सिस्टम इज, ओके। वर्ण सिस्टम के लिए आपको और एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों, वो ये कि individuals were not classified on the basis of heredity, okay, they were classified on the basis of their aptitude or ability, ओके। वर्ण सिस्टम जो था बच्चों वो पास्ट में हुआ करता था, एंड एट प्रेजेंट देयर इज कास्ट सिस्टम। Now let us talk about characteristics of caste. Okay, there are different characteristics of caste. Now let us see one by one. First one is what? Hierarchy. Okay, the caste is subject to social and religious hierarchy. Okay, hierarchy मतलब क्या बच्चों? Hierarchy means upper to lower. Okay, जैसे कि for example एक पिरामिड है, ओके, उस पिरामिड को हम फॉलो कर रहे हैं। Who are at the top? Brahmins. Brahmins are at the top, okay, and at the bottom, caste, different castes and subcastes, okay, etc. या तो Brahmins are at the top, and different caste and subcaste are at the middle of this pyramid, and lower caste are at the bottom, okay. This is what is hierarchical pattern, okay. Now next, heredity, okay. The social status of an individual is determined by the caste in which one is born, okay. यदि आप ब्राह्मण फैमिली में आपका जन्म हुआ है, you will be considered as Brahmin, etc. Okay. Then third characteristic is what? Endogamous group. एंडोगैमस ग्रुप आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है बच्चों, ओके। एंडोगैमस ग्रुप मतलब क्या कि मैरी विद इन अ ग्रुप, ओके, ओन कास्ट है ना, वन हैज टू मैरी विद इन हिज ओन कास्ट, ओके। हाँ, इंटर रिलीजियन या इंटर कास्ट मैरिज की बात अलग होती है, बट कास्ट की ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है एंडोगैमस ग्रुप। हर कास्ट वाले क्यों हर व्यक्ति यही चाहेगा कि मेरे बेटी की या बेटी की शादी अपने कास्ट में ही, दैट इज व्हाट इज एंडोगैमस ग्रुप, ओके। देन फोर्थ वन इज व्हाट? सोशल यूनिट, ओके। एक्चुअली ईच एंड एवरी कास्ट इज हैविंग या तो इट्स अ काइंड ऑफ सोशल यूनिट एंड व्हिच इज हेडेड बाय अ लीडर। हर कास्ट में कोई एक लीडर होता है, और वो लीडर जो है, लीडर बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेव विद अदर एक्सेट्रा, ओके। यदि कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है, ओके, तो उसको कभी कभी पनिशमेंट भी दी जाती है, या तो एक्सकम्युनिकेशन भी रखा जाता है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। नाउ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट? localized groups, okay. Then next characteristics of caste is traditional occupation, okay. In old caste system, members of a particular caste followed a certain occupation, है ना, and of course that occupation was handed over from one generation to the next, okay. The next, theory of pollution, ये भी एक कास्ट की
मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों. ओके, देन फूड हैबिट्स जो है वो अलग अलग है हर कास्ट की. ओके, सो दीज आर व्हाट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट. ओके, क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, वी वोंट गो इन डिटेल बिकॉज यदि डिटेल में जाएंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और आप लोग फिर बाद में कंटाला करते हो पूरा वीडियो देखने के लिए. ओके, तो मैं यू जस्ट read it out. Okay, those characteristics. Okay, hierarchy, first, second, heredity. Okay, third one is what? Endogamous group. Fourth characteristics of caste is social unit. Fifth characteristics of caste is localized groups. Sixth characteristics is traditional occupations. And seventh one is what? Theory of pollution. Okay. Then next, eighth one is what? Food habits. Okay, now let us talk about class system. It is universal in nature. That means class system is applicable everywhere. Okay, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हर देश में क्लास सिस्टम जो है बच्चों वो एप्लीकेबल है. That is what is the class system is universal in nature. Okay, आपके आपके सोसाइटी में या समाज में जो इकोनॉमिक पोजीशन है या जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वेदर यू आर रिच और पुअर, ओके, उसके बेसिस पे आपका क्लास जो है वो तय होता है और डिसाइड होता है. लाइक अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, है ना, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एक्सेट्रा. ओके, यहाँ पर इंडिविजुअल का जो इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक अचीवमेंट देखा जाता है बच्चों. ओके, इंडिविजुअल का बर्थ कौन सी फैमिली में हुआ है ये नहीं देखा जाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल का बर्थ किसी लोअर कास्ट फैमिली में हुआ है, ओके, और उस इंडिविजुअल ने और उसने खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया, अच्छी पोजीशन हासिल की, ओके, तो उस इंडिविजुअल का इकोनॉमिक अचीवमेंट डिसाइड करता है कि वो इंडिविजुअल कौन से क्लास से बिलोंग करता है. ओके बच्चों, आपको और एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये कि अपर क्लास से मतलब कि जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं उनको ज्यादा फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, या तो जो भी अदर रिसोर्सेस है, ओके, वो भी ज्यादा मिलते हैं जो किसी मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज को नहीं मिलती है. ओके, नाउ let us talk about factors to determine classes. Okay, now let us talk about factors to determine classes. Sociologists consider several factors to determine the classes. Okay, first factor is what? Income and wealth. Okay, आपके पास इनकम कितना है, आपके पास संपत्ति कितनी है, वेल्थ कितना है ना, ये सब डिसाइड करता है कि आप कौन से क्लास में हो. ओके, कौन से क्लास में हो. ओके, हाँ, कि आपके पास कितना गोल्ड है ना, प्रेशियस एलिमेंट्स है. देन if you are having car, bungalow वगैरह वगैरह. ओके, that is what is those things will decide your class. Okay, then level of education. Second factor is what? Level of education. आपका एजुकेशन क्या है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल किया है, आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है. ओके, ये भी आपका क्लास सोसाइटी में डिसाइड करता है. ओके, देन मटेरियल पोजीशन. ओके, आपके पास कितने लग्जरियस कार्स है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है ना, आपके पास ऑर्नामेंट्स क्या है, कितनी है. ओके, ये भी आपका क्लास डिसाइड करता है. देन लोकेलिटी ऑफ रेसिडेंस, हम लोग कहाँ कौन से एरिया में रहते हैं, ये भी हमारा क्लास डिसाइड करता है. फॉर एग्जांपल, हम लोग क्या हाई इनकम ग्रुप सोसाइटी में रहते हैं या स्लम एरिया में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, ये भी हमारा क्लास
डिसाइड करता है। देन प्रेस्टीज एंड स्टेटस, ओके, आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या है, ये भी आपका क्लास डिसाइड करता है। ओके, सो दीज आर व्हाट मेजर फैक्टर्स टू डिटरमाइन द क्लास, the classes in the society. Okay, income and wealth, then level of education, material possession, locality of residence, then prestige and status. These are what major factors they decide, they determine the classes. Okay, now let us talk about third point, which is estate system. Okay, the estate system is also a form of stratification. ओके, ये जो स्टेट सिस्टम है ये भी सोसाइटी को डिवाइड करने का एक फॉर्म है। ओके, विच एग्जिस्टेड इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एजेस। ओके, इन स्टेट सिस्टम, देखो बच्चों स्टेट सिस्टम में किस तरह से सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है वो देखते हैं हम लोग इसमें, कि इन state system a person's social position was determined by ownership, occupation and heredity status. ओके, पर्सन की जो पोजीशन थी, सोशल पोजीशन, वो कौन डिसाइड करता था, कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते थे, डिटरमाइन करते थे, वो था ओनरशिप। ओके, उस पर्सन को ऑक्यूपेशन क्या है, ओके, वो इंडिविजुअल या तो वो पर्सन किस हेरिडेटी स्टेटस से या तो से बिलोंग करता है। ओके, एंड एवरी स्ट्रैटम इन दिस सिस्टम हैड इट्स ओन एस्टैब्लिश्ड राइट्स एंड ड्यूटीज। जो स्ट्रैटास थे, ओके ओके, जो पोजीशंस थे या तो जो स्ट्रैटास थे, जो ग्रुप्स थे, ओके, हैविंग इट्स own established rights and duties. Okay, this system had a hierarchy based on heredity and did not allow much movement from one stratum to the other. Okay, जैसे हम लोगों ने क्लास सिस्टम में देखा है कि यदि आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हो और किसी रीजन से आपने अच्छा सा इकोनॉमिक स्टेटस हासिल किया, तो वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, he can move from lower to upper. Okay, but in state system this kind of movement is not allowed. Okay, now the state system consisted of four groups. इस state system में 4 ग्रुप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज क्लर्जी, then the aristocrats or feudal lords. Third one is what? Merchants and craftsmen. Fourth one is serfs or landless peasants. Okay, हाँ, तो clergies, who were clergies? Let us say the clergies performed religious duties. ये clergy कौन होते थे? Just like brahmins, कि जो धार्मिक ड्यूटीज परफॉर्म करते थे। Okay, they enjoyed considerable prestige and owned large amount of land. उनके पास large amount of land होती थी। Okay, they commanded respect from other members of the society. Okay, वो अदर मेंबर जो होते थे सोसाइटी के, उनसे रिस्पेक्ट हासिल करते थे। ओके, अभी देखो इनमें मीन्स क्लर्जिस के पास ओनरशिप भी थी, दे वर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड। ओके, दे वर हैविंग व्हाट, ऑक्यूपेशन क्या था उनका? रिलीजियस, टू परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटीज, ये उनका ऑक्यूपेशन था। एंड हेरिडिटी क्या थी कि यदि आज रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ब्राह्मण है, तो आगे की जनरेशन भी वही ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? एरिस्टोक्रेट्स. एक्चुअली द एरिस्टोक्रेट्स कंप्राइज्ड ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रॉयल्टी और फ्यूडल लॉर्ड्स. ये जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे बच्चों, ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे. ओके, दे ऑल्सो एंजॉयड हेरिडिटी
स्टेटस एंड प्रेस्टीज. ओके, इनको भी समाज में अच्छा सा स्टेटस था. ओके, एंड ऑफ कोर्स द वेल्थ वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन देयर हैंड्स ऑल्सो. इनके पास भी अच्छी खासी वेल्थ होती थी. किनके पास? एरिस्टोक्रेट्स के पास. ओके, द एरिस्टोक्रेट्स ओन द लैंड एज वेल एज द लैंडलेस पीजन्स. इनके पास जमीन भी हुआ करती थी बड़ी, एंड उसके साथ साथ जो लैंडलेस पीजन्स होते थे, कि वो भी इनके पास रहते थे. ओके, हु लिव्ड एंड वर्कड ऑन द लैंड, कि जो इनकी जमीन के लिए काम करते थे, इनके लिए काम करते थे जमीन पे. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये लोग जो लैंडलेस पीजेंट्स थे, इन्होंने यदि इनसे कर्जा लिया, ओके, तो वो कर्जे के बदले में उनके पास जो जमीन हुआ करती थी थोड़े बहुत, वो भी ले लेते थे, एंड उसके साथ उनको पूरी जिंदगी के लिए अपने पास ही खेती में काम करने के लिए रखते थे. ओके, the aristocrats were warriors and protected their feudal tenants or servants. Now let us see third group is what? Merchants and craftsmen. Okay, the merchants undertook business related activities. ये merchants क्या करते थे कि जो business related activities होती थी उनमें ये हिस्सा लेते थे. एंड द क्राफ्ट्समैन अंडरटुक पर्टिकुलर क्राफ्ट. फॉर एग्जांपल पॉटर है, पॉटर वगैरह, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्समैन. मतलब जो भी हैंडमेड चीज़ें होती है, ये हाथों से बनाते हैं क्राफ्ट्समैन. जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती है उनको क्राफ्ट्समैन कहा जाता है. ओके, which was mostly passed from one generation to another. Okay, in real sense, the merchants and craftsmen were outside the estate system, बिकॉज इनके पास कुछ ओनरशिप भी नहीं थी मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन के लिए. ओके, ओनरशिप भी नहीं थी, एंड हाँ. देन नेक्स्ट इज व्हाट? सर्व्स. द सर्व्स वेर लीगली टाइड टू द लैंड. ओके, ये जो सर्व्स होते थे, ओके, दे वेर लीगली टाइड टू द लैंड. इनको सर्व्स या तो हम लोग गुलाम बोलेंगे, स्लेव्स. ओके, एंड उनकी जो कंडीशन थी, इट वाज जस्ट लाइक slaves. Okay, however, unlike slaves, the serfs were not bought or sold but came with the land. Okay, ये जो स्लेव्स को क्या मतलब, जो गुलाम होते हैं उनको क्या बेचा जाता था या परचेस किया जाता था. ओके, लेकिन ये जो सर्फ्स होते हैं, ओके, यदि उन्होंने कुछ कर्जा लिया है साहूकार से, फ्यूडल लॉर्ड्स से, ओके, तो वो कर्जा चुकाने के लिए पूरी जिंदगी उस फ्यूडल लॉर्ड के लिए काम करते थे. ओके, सो दे वर कॉल्ड व्हाट? सर्व्स. देखो बच्चों, इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लर्न किया है. उसके साथ साथ जो 3 मेन सिस्टम्स है ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, वो भी हम लोगों ने यहाँ इस वीडियो में लर्न किया है. तो 3 मेन सिस्टम्स कौन सी है स्ट्रैटिफिकेशन की? फर्स्ट हम लोगों ने लर्न किया है कास्ट सिस्टम. सेकेंड सिस्टम जो है स्ट्रैटिफिकेशन की, वो क्लास सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किया है. एंड जस्ट we talked about what estate system. Okay, in next video we'll talk about social dimensions. One second, let me check it out. In next video we will talk about dimensions of social stratification. Okay, till then, goodbye, have a nice day.